آنے والا زمانہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، روبوٹکس کا زمانہ ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ایسے میں آج ہمیں بچوں کو کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا بچوں کو، اس پر ہم بات کریں گے۔ ریحان حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کوڈنگ اور پروگرامنگ ایکسپرٹ ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں یہ ان بچوں کو بھی پروگرامنگ اور کوڈنگ سکھا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں یا مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینکس فار سر۔ سر سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ اگر آج کا بچہ جی کمپیوٹر پروگرامنگ اور کوڈنگ سیکھنا چاہے تو کس عمر میں وہ سیکھ سکتا ہے اور اس کو آنے والی زندگی میں فائدہ کیا ہوگا؟ پرفیکٹ، بہت شکریہ جی۔ اب جو دنیا ہے، جب سے کووڈ کا جو گریٹ پاز آیا ہے تو دنیا چینج ہو گئی، ہر کی زندگی میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ انفیوز ہو چکا ہے۔ تو اب جو فیوچر ہے وہ بالکل کمپیوٹر کوڈنگ کا، کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہے۔ جو نارملی جو بچے اسٹارٹ کرتے ہیں 5 سال کی عمر کے بعد سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ سکتا ہے؟ ہم نے تو ماسٹرز میں آ کے سیکھی تھی۔ جی بالکل۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کو؟ یہ جو پروگرامنگ ہم 5 سال سے اسٹارٹ کرتے ہیں، مگر پاکستان کی ہم جب بات کریں، کیونکہ پاکستان کے لیے ہم نے پروجیکٹ کو تھوڑا ڈفرینٹ رکھا تھا۔ اچھا۔ کیونکہ یہاں کی بچوں کی گرومنگ کے لحاظ سے پلان یہ تھا کہ 7 سال سے اسٹارٹ کرتے ہیں، 17 سال تک جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے جس میں بچے کا مائنڈ گروم کرتا ہے۔ اور پروگرامنگ ہم صرف یہ نہیں کہ ان کو کوڈنگ سکھانا ہے، ان کو ہم ڈفرینٹ بلاکس کے فارم میں ان کے ایک کانسیپچولی ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے جو ڈفرینٹ جو گیمز ہوتے ہیں ان سے سکھاتے ہیں۔ یعنی کہ بچے گیم کھیلنے کے بجائے اس عمر کے بچے گیم بنا بھی سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی۔ اب کیا سچویشن ہے کہ آفٹر کووڈ میں بار بار ریفرنس دوں گا کیونکہ اب ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں زندگی گزارنے کے نئے طریقے آ گئے ہیں۔ صحیح ہے۔ جو سب سے زیادہ جو انڈسٹری جو گرو کیا ہے آفٹر کووڈ وہ ہے گیمنگ انڈسٹری۔ ہم بچوں کو منع کرتے تھے بیٹا گیم نہ کھیلو، اور آج ہم کہتے ہیں جو $1 بلین مارکیٹ ہے، یہی مارکیٹ ہے اب کہ گیمز بناؤ، ایپس بناؤ، ویب سائٹ بناؤ۔ سائبر سیکیورٹی، اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، مگر سائبر سیکیورٹی پہ دیکھیں کتنی ڈیمانڈ ہے، نیڈ ہے، اگر فیوچر کی۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا، جی ہم جو پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے اسٹریٹ چلڈرن کو چنا، جی بالکل، اور ان کا کتنا انٹرسٹ تھا اس ساری ایکٹیویٹی میں اور وہ کتنے ایگر تھے سیکھنے کے لیے؟ بالکل۔ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اسٹارٹ اپ، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچے جو 7 سے 17 سال کے بچوں کو ہم نے ایک آن لائن لرننگ پلیٹ فارم بنایا تھا بیک ان 2020، اب ہم نے ان پرسن بھی کر دیا ہے۔ ہم بچوں کو اس میں اینیمیشن، گرافکس اور سائبر سیکیورٹی، روبوٹکس، AI یہ سکھاتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ایئر سے پاکستان میں تقریباً 300 بچے اب تک ہم نے ایسے ٹرین کیے ہیں جن کو کوڈنگ کا پتہ نہیں تھا۔ کچھ بچے ایسے تھے جن کا جو بیچارے کچرا چنتے تھے، انہی کے ساتھ ہیں جیسے اعظم ہیں، ان کے فرحان کے جو فادر ہیں، یہ فرحان خود پالش کا کام کرتا ہے۔ اچھا فرحان، اپنی پھر کہانی سناؤ نا، کیا کرتے تھے پھر پروگرامنگ میں، کیا کیا سیکھا؟ سب سے پہلے میں ابو کے ساتھ کام کر رہا تھا جو کہ ٹیل پالش تھا، ہم کرتے اس سے، تو میں نے کوڈنگ کیا اور کچھ پڑھا، تو اس کے بعد پھر میں گیا تھا انویکٹس جم جو کہ ڈبار اسلام آباد میں بھی وہاں پہ کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا 18,000 سیلری ہے وہاں پہ۔ ارے واہ! اور وہاں پہ جو کہ لوگ آتے ہیں نا، انٹرنگ اس کے ڈیٹا میں کرتا ہوں، انٹر کرتے ہیں، ڈیٹا انٹری کرتے ہیں۔ تو تم سیکھا کیا کیا تھا تم نے؟ میں نے کوڈنگ سیکھی تھی جو کہ مطلب چپکو جینیور یہ تھا۔ کون سی پروگرامنگ لینگویج کوئی تھی؟ HTML تھی سر، HTML بھی ہم نے ویب سائٹ میں۔ اچھا، کیا بات ہے۔ اور اسکول گئے ہو کبھی؟ یس۔ کتنی کلاسز تک؟ پہلے میں کم سے کم پڑھا تھا لیکن اتنا نہیں پڑھا سر، اس کے بعد پھر میں بہت چھوٹا تھا، پہلے کلاس ہی میں نے پڑھا ابھی تک، پہلی تک پڑھا۔ اچھا، تو کوڈنگ سیکھنا مشکل لگا کیونکہ اسکول تو گئے نہیں کبھی، تو ہمارا تو ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ بھائی اسکول آپ جائیں گے تو ہی آپ پڑھ لکھ سکیں گے اور کمپیوٹر کی لینگویج سیکھ سکیں گے۔ میں پہلے کلاس میں جب میں تھا نا دوسرے اسکول میں تھا، اس کے بعد میں یہاں پہ تو 9ویں کلاس میں نے سیکھا۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا حلیمہ، آپ بتائیں آپ کیا کرتی تھیں اور پھر آپ نے کیسے سیکھا کمپیوٹر؟ السلام علیکم، میرا نام حلیمہ ہے اور میرے فادر پینٹنگ کا کام کرتے ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں، جیسے کپڑوں کے وہ کپڑے بیچتے ہیں نا، کپڑے بیچتے ہیں۔ تو میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ تم پڑھو، میرے گھر میں نہ رہو، کیونکہ مجھے بچپن سے کمپیوٹر کا شوق ہے، مجھے کمپیوٹر سیکھنا بڑا وہ ہے، مطلب اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور اسکول وغیرہ جاتی ہو؟ یس۔ اچھا، جاتی ہیں آپ اسکول وغیرہ۔ اور ایج کیا ہے؟ 12۔ اچھا، 12 سال کی ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا سیکھا کمپیوٹر پہ؟ کمپیوٹر میں ہم کچھ اپنا کام آسان کر سکتے، جو
3 घंटे 4 घंटे में हो सकता है वो हम 1 मिनट में 3 सेकंड में हो सकता है हमारा। जैसे पेपर बनाते हो वो तो गिनती में मुश्किल हो सकता है, हम कंप्यूटर से आसानी ले सकते हैं, वो हम कंप्यूटर हमारा काम। आप कोई काम भी कर रही है, कुछ पैसे वैसे कमा रही है कंप्यूटर से? अभी से शुरू किया आपने या नहीं? नहीं, अभी तो सीख रही हूँ। अभी सीख रही हैं आप, ठीक है ठीक है। तो ये डांटते वांटते भी है या ये लोग आराम से प्यार से सिखाते हैं या डांट डपट करते हैं? प्यार से सिखाते हैं। अच्छा, अगर आज किसी बच्चे को शुरू करना हो कि जी मैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहता हूँ, या उसके वालिदैन चाहें कि भाई बच्चा है 7 साल का है या 8 साल का है और उसको सिखाना है, तो किन चीज़ों से शुरू किया जाए? जी परफेक्ट। हम एक तो होता है कि स्ट्रेट आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग के नाम से उनके बज़वर्ड है सिखाना शुरू करते हैं, हम इसको फॉलो नहीं करते और हम प्रेफर भी नहीं करते कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। हम बच्चे को, क्योंकि अगर 7 साल का बच्चा भी शॉप भी होता है, अब ऐसा भी नहीं कर सकते 7 से 9 साल का ग्रुप बना दें। हमने एक असेसमेंट डिफाइन किया हुआ है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है कि बच्चों को स्किल्स को हम समझते हैं कि बच्चे के पास स्किल्स क्या हैं जो उनकी लैंग्वेज में हमने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो है स्किल्स बेस्ड लर्निंग पे और आपकी कौन कौन से आपके पास स्किल्स हैं। हम बच्चों को पहले समझते हैं कि बच्चे का माइंडसेट क्या कहता है, एक असेसमेंट करके बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है, उसकी सोच क्या है। हमारे साथ मेंटर्स हैं इंटरनेशनल। वो तो एक जेनरिक प्रोसेस है ना जो आप लोग करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आप घर में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे हैं और वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को कहूं कि भाई आप कंप्यूटर ऑन करें, यूट्यूब पर इतने ट्यूटोरियल्स हैं, जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें। तो किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जो फ्यूचर में काम आए उनको? बिल्कुल, जो फ्यूचर में जो काम आएंगे ज़्यादातर जो बेसिक है फाउंडेशन बनाना बहुत अहम है, क्योंकि हमारी उसके बाद स्पीड एक्सेलरेट कर जाती है। जब हम फ्यूचर में हम रिकमेंड करते हैं कि ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सीखें। मसलन कौन सी लैंग्वेज? स्क्रैच है जी, स्क्रैच लैंग्वेज है। इसके अलावा ब्लॉकली है जो गूगल का है। दूसरा कौन सा? गूगल वालों ने एक अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली है, ब्लॉकली। सही है। तो ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो हम रिकमेंड करते हैं हर बच्चा ट्राई करे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, देखिए वो कितना अडेप्ट कर सकता है, उसके बाद फिर बाकी लैंग्वेजेस आते हैं। स्क्रैच और ब्लॉकली ये आप आराम से जाकर बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएंगे, सीखें, ऑनलाइन इसके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और MIT वालों ने भी स्क्रैच का तो काफी बनाया हुआ है उसके ऊपर। यस बिल्कुल सही है जी। और ये वो लोग भी सीख सकते हैं या वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं गए हुए, जिनके पास उस तरह की बुनियादी लैंग्वेज वाली वो नहीं है? एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें बच्चे की जो वो ब्लॉक के थ्रू सिखाते हैं ना, तो इंसान को ऑटोमेटिकली उसके साथ फ्लो बनता रहता है कि ये ब्लॉक मूव हो रहा है, कैसे मूव होगा, अब क्या लिखना चाहिए, फिर कॉमन सेंस आ जाती है कि इफ होगा तो अच्छा ऐसा होगा, तो फिर हम अपनी जबान में से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप पे होता है एक जैसे जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, शुरू में छोटे स्टेप्स लेते हैं, फिर आस्ते आस्ते क्रॉल, फिर उसके बाद भागना शुरू करते हैं, इस तरह फिर करते हैं। सही है। और कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक आप लोग ये सिखा चुके हैं? हम लोग अब तक 400 कर चुके हैं पिछले साल से पाकिस्तान पे। अभी हम KP गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम गिलगित की गवर्नमेंट के साथ अभी हमारा प्रोजेक्ट किक ऑफ होने वाला है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ हम काम कर रहे हैं ताकि वो CSR के इनिशिएटिव को, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहते हैं कि पे बैक टू द कम्युनिटी, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे इस वक्त सखर में प्रोजेक्ट चल रहा है, कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, गिलगित में। अभी हमने एक स्कूल ऑन बोर्ड किया जो सिर्फ लड़कियों का है। अच्छा, सिर्फ लड़कियों का। अब माशाल्लाह उन्होंने कहा कि आप हमें ग्राफिक्स सिखाएं, क्योंकि लड़कियों में इंटेंशन होती है ग्राफिक्स की, क्रिएटिविटी बड़ी जबरदस्त, क्योंकि उस पर हर चीज़ कंप्यूटर पे, क्योंकि हम कहते हैं कि तुम 6 महीने हमारे साथ कर लो, गिग इकोनॉमी है, फोर्थ रेवोल्यूशन है, आप इसमें खुद पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो 400 बच्चे जिनको आप ट्रेन कर चुके हैं, जो कि सारे मतलब लो इनकम ग्रुप से हैं, तो अब इन्होंने कमाना शुरू कर दिया है? अभी बेसिकली हमने उनको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट करा दिया है। सही है। अब उसके बाद क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे ऑनलाइन और इन पर्सन, इस्लामाबाद हमने स्टार्ट किया इन पर्सन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कोई वालिदैन है, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चलो भाई स्क्रैच या ब्लॉकली तुम सीख लिया, बच्चे ने सीखा भी और उसको आ गया भाई, बड़ा जबरदस्त हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि जो वो कुछ और सीखे, या फिर पैसे कमाने की तरफ अगर उसको जाना हो बच्चे को, तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरीके से उस तरफ जा सकता है? जी, जैसे कोई जो बेसिक्स के बाद उसका एक माइंडसेट खुल जाता है, उसके बाद उसके बाद राउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि मुझे AI की तरफ जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, या फिर मैं गेम डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाऊँ, एनिमेशंस की तरफ आ जाऊँ, या ड्रोन की तरफ आ जाऊँ मैं। ये तमाम चीज़ें उसके बाद ग्रेजुअली फिर उसका खुल जाएगी, समझ आती है। 6 महीने 8 महीने साल का, क्योंकि ये कोई वो तो नहीं कर सकते कि हम चुटकी बजा के इसको कर देना, तो 6 से कम उसके बाद फिर फर्दर हम उस पर ब्लॉक
फिर ब्लॉक के बाद जिंगा जैसे सॉर्ट ऑफ हम इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं ये सोच रही थी कि ये 400 बच्चों को आप लोगों ने स्ट्रीट चिल्ड्रन को सिखाई है कोडिंग, और ये कंप्यूटर की तरफ आ गए हैं और अब ये पैसा कमा सकते हैं अपना, लेकिन ये उन घरानों से आते हैं जिनके पास ये गैजेट्स या ये लैपटॉप्स या ये मतलब टैब्स वगैरह नहीं होते, तो ये फिर क्या करें? मतलब सिखा तो आपने उनको फ्री दिया, सारी स्किल आपने दे दी, अब वो जो गैजेट नहीं है तो फिर क्या करें? इसके अलावा बड़ा प्रॉब्लम होता है फैमिली का प्रेशर। अच्छा, हमारे साथ हैं आजम जो उनके घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है कोई नहीं पढ़ेगा। अच्छा, मगर उनके फादर ने डिसीजन लिया कि जैसे कि बेटा तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हें करियर से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हर दूसरे के पास फ़ोन है या फिर लैपटॉप है। जो हम समझते हैं कि अगर ये बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, हम उसको लैपटॉप भी देते हैं, हम उसको डिवाइस भी देते हैं, और हमने अब एक स्कॉलरशिप का बेसिकली के अंडर डोमेन में आता है ये। हम ये कमिट करते हैं कि अगर ये बच्चा कर गया, हम इसको स्कॉलरशिप देकर हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उसमें हम उनको ले लेंगे। ज़बरदस्त। तो आपका क्या इरादा है, आगे क्या बनेंगी आप, क्या करना चाहती हैं? मुझे कंप्यूटर का टीचर बनने का बड़ा शौक। कंप्यूटर का टीचर बनना है, चलो ये भी सही है। चलो इसकी तो बड़ी डिमांड है भाई, टीचर आ गए, स्कूल में टीचर कंप्यूटर सिखाने के लिए कम होंगे तो ये तो डिमांड वाला प्रोफेशन है। एप्लीकेशंस बनाने, मोबाइल एप्लीकेशंस। अच्छा, मोबाइल ये बताओ एक सेकंड, पबजी खेली है कभी? यस, मैं अच्छा, तो मैंने तो नहीं खेली कभी भी भाई। हमने भी नहीं खेली, लेकिन ये तो क्योंकि गेम्स बनाने वाले हैं तो इनको तो हर गेम का पता होना चाहिए कि कैसे है। जी जी बिल्कुल। इसलिए गेम डेवलपमेंट भी एक अलग एक फील्ड है जिसके बारे में भी आपने बात की। अब कोई बच्चा अगर गेम डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो वो कौन से कोर्सेज करे? या वो भी स्क्रैच और ब्लॉकली से उसका हो जाएगा? स्क्रैच और ब्लॉकली क्योंकि माशाल्लाह इसका नाम इतना हो गया है कि ये एक बेसिक फाउंडेशन में, क्योंकि एक होता है ना जैसे हम एक कहते हैं जो बफर आ जाए, बफर या फिर एक होता है ना जो प्लेटू बना देते हैं कि हाँ जी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर वो स्किल्स डिफरेंट होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनकी माशाल्लाह उनका माइंड बहुत शार्प होता है। ठीक है, अब हमें जो नॉर्मल जो हम सब जो है हम एक कंफर्ट जोन देते हैं जहाँ पे बच्चे स्क्रैच या ब्लॉकली करने के बाद देख सकते हैं कि जी मुझे ग्राफिक्स की तरफ जाना है या फिर एनिमेशन गेम्स की तरफ, तो स्टार्ट हम ये करवाते हैं, उसके बाद फिर इसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरफ लेके जाते हैं। सही है, और फिर वो बच्चा पाइथन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फ्यूचर में इन बच्चों को या चाहे वो किसी और प्रोफेशन में जाए, मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो डॉक्टर बनता है फ्यूचर में जाकर, या जो है वो लॉयर बनता है, या कोई कुछ और काम करता है, तो प्रोग्रामिंग अगर बच्चों ने सीखी हुई है तो क्या उनको बाकी प्रोफेशंस में भी फायदा होता है? आपने स्पॉट ऑन बात की है, क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि एक तो रिसर्च बताऊंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भाई 2030 में 80% जॉब्स ऐसी आएंगे जिसका आज हमें पता नहीं है। वो एक और रिसर्च है कि भाई 30% जॉब्स ऐसी होंगे जिसमें रोबोट्स के साथ ही काम होगा। अब जो नई जॉब्स कौन सी होंगी? AI असिस्टेड टेक्नीशियन, कि अब मुझे ज़रूरत नहीं डॉक्टर पास जाने की, मैं यहीं से बैठ के इलाज करवा सकता हूँ। इसके अलावा जो क्या कहते हैं साइबर के जो बेसिकली साइबर सिटी एनालिस्ट एक जॉब है, इसके अलावा वर्चुअल ऑफिसेस के ऐसे जॉब्स हैं जिसमें मेटावर्स पे काम हो रहा है, जिसमें 3D की अलग दुनिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें अब हम अभी से हमें प्लानिंग करना ताकि उस सोच को बिल्ड कर सकें। बिल्कुल। एक और डिग्री थी नाजरीन, बाहर हमने उसके बारे में सुना और हम बड़ा हैरान हुए कि चोरी कैसे करते हैं। ये सिखाएंगे वो आपको कि चोर चोरी कैसे करता है, सो दैट यू कैन काउंटर द क्राइम। लेकिन वो करा के आपको सिखाएंगे तो वाकई 2030 में एथिकल हैकर पहले समझे कि अपने आप को उसके माइंडसेट में उसको उस जगह पे डाल के देखो। बिल्कुल, दे वुड लीव यू इन द रेस्टोरेंट कि भाई इसका मोबाइल टेबल पे पड़ा है, ये वो देखने में मसरूफ है मेन्यू, और आहिस्ता से मोबाइल उठा के आप चले गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 2030 में यकीनन आएंगी। कोर्स किया हुआ है? मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ संभाल लो अपना मोबाइल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जी। बच्चों को सिखाएं प्रोग्रामिंग और उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार कर लें जी। ये था हमारा आज का फाइनल मैसेज।